کہ پاک فوج کی جنگی مشقیں زور و شور سے جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جنگی حکمت عملی کے پیش نظر مشقوں میں جدید ہتھیاروں کا مظاہرہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں احمد منصور سے ہی۔ تو احمد منصور، بتائیے گا پاک فوج کی تیاریوں سے متعلق۔ دیکھیں، جو ابھی سب سے پہلے ٹائمز ناؤ کی رپورٹ ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ کس طرح بھارت جنگی ماحول پیدا کرنے کی سازش کر رہا ہے، اور مودی نے افواج کو کسی بھی وقت کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی مکمل آزادی دے دی ہے۔ تو اسی حوالے سے پاک فوج جو مکمل طور پر تیار ہے سرحد پر، اور جنگی مشقیں جو پورے زور و شور سے جاری ہیں جنگی حکمت عملی کے پیش نظر، ان مشقوں میں جدید ہتھیاروں کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ان مشقوں میں افسران اور جوان اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں کو بھرپور طریقے سے دکھا رہے ہیں، اور سیکورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینا ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا اچھا احمد منصور، ہمارے ساتھ رہیے۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ سے ذرا جاننا چاہیں گے کہ پاکستانی فوج کس طرح سے دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے اور اسے جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ عام روٹین میں پاک فوج کی کیا مصروفیات اور تیاریاں ہوتی ہیں، اور ایسے حالات میں کیا فرق آتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے ویسے بھی افواج پاکستان کا امن کے پیش حالات ہوتے ہیں تو اس میں یہی ایکسرسائزز ہوتے ہیں اور ٹریننگ ہوتی ہے، اور جو ٹریننگ ہوتی ہے جنگ کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے، اور ایک ہر اس ڈیولپنگ سچویشن جو بھی ہو، نئے جو ویپنس انڈکٹ ہوتے ہیں یا نئے ڈاکٹرینز آتے ہیں، اور اس کو بیس کر کے ٹریننگ کی جاتی ہے اور اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے پلٹون لیول سے لے کے یہ فارمیشن لیول تک ایکسرسائز جاتی ہے، جس میں کور بھی انوالو ہوتی ہے، اور جس میں نئے ویپن جو انڈکٹ ہوتے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کیا جاتا ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے، چاہے آپ ڈیزرٹ میں بیٹھے ہوں تو وہاں کچھ اس انوائرمنٹس کے مطابق تیاری ہوتی ہے، یا پلینز آپ پنجاب میں ہوں تو وہاں پہ ہے، جب آپ گلگت بلتستان میں ہیں تو وہاں ڈفرینٹ ماحول ہے، اس کے حساب سے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں تو ڈفرینٹ ماحول میں، تو افواج پاکستان ہم وقت تیاری کی حالت میں ہوتے ہیں اور وقت کے ضرورت کے مطابق اور جس طریقے سے ابھی کے ہماری ایکسرسائزز چل رہے ہیں، وہ تیاری اور ہم کا ایک عزم کا اظہار ہے کہ افواج پاکستان، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں ہر گھڑی تیار کامران ہے، اور جہاں سے بھی کوئی دشمن کی کوشش ہوگی کہ کوشش کرے گا وائلیٹ کرنے کی، تو اس کا ایک بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے مشرقی سرحدوں کی جانب اور سمندر میں وکرانت ان کا جہاز وہ اتارا گیا اور پھر وہ واپس کاروار چلا گیا، دوسری جانب یہ ایل او سی کی طرف بھی تھوڑی ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کی جانب سے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری حکمت عملی کس طرح سے ان سب چیزوں کو ٹیکل کرتی ہے؟ دیکھیں، تمام چیزوں میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے جو افواج پاکستان ہیں، چاہے وہ نیوی کے ہیں، ایئر فورس کے ہیں، گراؤنڈ فورسز سے مستعد ہیں، ویجیلنٹ ہیں۔ دیکھیں INS وکرانت آیا تھا، لیکن وہاں نیوی اپنی ایکسرسائزز کر رہی تھی تو وہ ان کی پریزنس دیکھ کے وہیں سے واپس مڑ گیا۔ اور سملرلی آپ نے دیکھا ہے 2 کوڈ کاپٹرز ہم نے گرائے جو جاسوسی کے سلسلے میں پاکستانی حدود کے اندر آ گئے تھے۔ کل جو رات کو رافیل آئے تھے، کوشش جس انٹینشن کے ساتھ آئے تھے، ہمارے جب جہاز اسی ویسینٹی میں آئے تو ان کو دیکھ کے ہی بھاگ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ LOC پہ کل جو ہم نے جو وہاں پہ وائلیشن انڈیا نے کی تھی، اس کے جواب میں چک پترا جو ان کے پوسٹ تھی اس کو ڈسٹرائک کیا اور بنکرز بھی ڈسٹرائک کیے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر طرف سے افواج پاکستان متحد ہے، نہ صرف ایسٹ سے ہم ہوشیار ہیں بلکہ ویسٹرن بارڈر سے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے پراکسی فتنہ اور خارج کو استعمال کر کے انہوں نے دہشت گرد بھجوائے تھے، تو ان کا سب کا ہم نے صفایا کر دیا۔ تو افواج پاکستان ہے، افواج کے ساتھ قوم، افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اور قوم کی مدد سے انشاءاللہ پاکستان کو ہر فرنٹ پہ کامیابی نصیب ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج کا جو جذبہ ہے وہ دنیا بھر میں کسی بھی اور فوج اور کسی بھی اور قوم میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب نے۔ عبداللہ گل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ فرمائیے گا، دفاعی معاملات پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے آپ کی، ایک جانب بھارت کی جانب سے گیدڑ بھبکیاں اور جس طرح سے ایکٹیویٹی LOC کی جانب یا سمندری حدود کی جانب ہم دیکھ رہے ہیں اور بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس کے پیش نظر جو پاکستانی فوج تیار ہے اور ریسنٹلی جو مشقیں شروع کی گئی ہیں ان پر ذرا آپ سے جاننا چاہیں گے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तानी फ़ौज की जो प्रोफेशनलिज्म है उसके अंदर तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हालिया जो मगरिब ने सर्वे कंडक्ट किया उसके अंदर वो बड़ा मज़ेदार सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, दो आदमी बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी फ़ौज कौन सी है प्रोफेशनलिज्म में, तो वो कहता है अमेरिका की फ़ौज, वो कहता है गलत। इस तरह से 5-7 मुल्कों के नाम लेता है, वो कहता है गलत। वो कहता है पाकिस्तान की फ़ौज है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं। अभी हालिया पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को दुनिया की 7 प्रोफेशनल एयरफोर्स के अंदर शामिल किया गया। पाकिस्तान नेवी का ये आलम है कि भारत का जो नेवल चीफ है वो पाकिस्तान की नेवी पे ये कहता है कि मैं हैरान हूँ इनकी तरक्की और इनकी काबिलियत देख के, ये वो कह रहे हैं। दूसरी जानिब आप देख लीजिए कि किस तरह से नेवल मशकें जो हैं वो बिल्कुल तकरीबन कोई 80 नॉटिकल माइल के ऊपर जो है वो दोनों के आमने सामने जो है वो कल जो है वो हमारी नेवी जो है और इंडियन नेवी जो है वो आमने सामने आ गई। दूसरी जानिब जो है हमारी अगर नेवल कैपेसिटी को देखें तो हमारे पास वो मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिसने जब HMS शेफील्ड जो कि बरतानिया का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, फॉकलैंड जंग के अंदर उसको 2 टुकड़े कर दिया था। वो मिसाइल सिस्टम जिसको हार्पून मिसाइल कहते हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। इसी तरह से बाबर मिसाइल सिस्टम जो हमारे पास मौजूद है वो नेवल जो टारगेट्स हैं उनको आसानी जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, हदफ बनाता है, और ये बातें भारत को अच्छी तरीके से पता हैं। उनको बहुत तकलीफ है इस बात पे। दूसरी बात उसके अंदर जो है वो हमारी एयर सुपेरियोरिटी है। अगर भारत अपने राफेल जेट की तरफ बात कर रहा है तो आप देख लें कि SP धारकर जो उनके वाइस चीफ हैं नेवी के और एयरफोर्स के, उन्होंने एयर मार्शल धारकर जो हैं वो कल उनको ओहदे से जो है सुबुकदोश कर दिया गया है 7 माह के बाद ही। और ये तब हुआ जब एक ही दिन पहले उनके जो साबिक वाइस चीफ और साबिक DGMI और मौजूदा 16वीं कोर के कमांडर जो इस टाइम पे कश्मीर में तैनात हैं, जिनको जो है वो कमांडर नदरन कमांड कहा जाता है, उन्होंने जो है वो ये कहा है कि पहलगाम के वाकया जो है वो पाकिस्तान का उससे ताल्लुक नहीं बल्कि ये काम भारत ने किया है और इसीलिए उनको भी सबुकदोश कर दिया गया। एक ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने हैं, ये मशकें हो रही हैं। देखिए, मशकों का मकसद ये होता है कि दुश्मन पर अपनी धाक कायम करना, उनको बताना। पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल बैटरीज और इसी तरीके से जो हमारे 5 डिफरेंट बैटरीज हैं उनको वो सामने लेके आए हैं, और ये भारत के लिए जो है वो बायस तशवीश नहीं बल्कि बायस खौफ है। भारत के ऊपर इस टाइम पे खौफ है, और जिस तरीके से अभी ब्रिगेड साहब फरमा रहे थे कि किस तरीके से हमने उनकी चेक पोस्ट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया है, यानी कि लेजर जो हमने टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ जो है वो हमने प्रिसीजन गाइडेड चीजें जो है इस्तेमाल की है। पहली दफा है कि अरसा 30 साल के बाद हमने जो अपनी स्ट्रेटजी है उसमें एक मेजर जो है वो टर्निंग पॉइंट लेके आए हैं। इसको एक हम कह सकते हैं कि एक मेगा चेंज है, और वो है हमने डिफेंसिव पॉलिसी से ऑफेंसिव डिफेंस के ऊपर चले गए हैं। यानी कि हम अब जो है वो सिर्फ दिफा नहीं करेंगे बल्कि हम आगे बढ़कर इंशाल्लाह भारत का इलाका भी जो है वो कब्जा करेंगे, और वापस भी कोई नहीं देना है इस बार, क्योंकि इस बार हमारा जो मूड है वो बड़ा वाज़ेह है। अभी हमने जो है वो DGI इस्पियार साहब ने 2 बातें कही हैं बहुत ही अहम। पहली बात यह है कि भारत की फौज इस बार इन्वॉल्व है दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने में, और उसके उन्होंने शवाहिद दिए हैं कि भारतीय मेजर और भारतीय सूबेदार जो है बाकायदा जो है वो सिविलियन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि वो एक दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये फौज नहीं बल्कि एक मर्सनरीज हैं जो नॉर्मल जो इंसानियत है उसके दुश्मन है। इसी तरीके से आप देख लें कि जिस तरह से रॉ ने कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, कतर में जिस तरीके से और खुद पाकिस्तान के अंदर उन्होंने हमले किए, जिसके उन्होंने अब दुनिया के अंदर ये बात खुल के आ गई है। इसी वजह से जो मगरिब की सपोर्ट है वो कम हो गई है। ये भारत जो इस टाइम पे जो कुछ कर रहा है वो थोड़ा बहुत जो सिर्फ अपने लोगों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए कर रहा है। आप देखें, एक तरफ उनके जो एयर मार्शल हैं वो सबुकदोश कर दिए जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान से नहीं लड़ना। वो राफेल जेट को जो है वो वापस बुला लेते हैं। जब पाकिस्तानी जेट सामने आते हैं मैदान में, अल्हम्दुलिल्लाह, तो शाहीनों के सामने एक करगस जो है वो खड़ा नहीं हो सकता और उसको भागना पड़ता है। तो ये गिद्ध हैं, ये पाकिस्तान पर हमला करेंगे, इनकी ऐसी की तैसी। देखिए, दूसरी जानिब जो है वो आपने देख लिया कि पाकिस्तान फौज की जो हमने मशकें की हैं, और ख़ास तौर पे जो इसके अंदर जो हमारी 30 कोर है और इसी तरीके से 1 कोर जो कि पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर है, 1 कोर और 2 कोर आर्मी रिजर्व नॉर्थ और आर्मी रिजर्व साउथ कहलाते हैं।
इन दोनों कोर्स के मौजूदगी के अंदर जिस तरीके से हमारी प्रोफेशनल तैयारियां मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे भारत की जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, जो कि एक ज़माने में बड़ा उनका नाम था कि जी हम इंडिपेंडेंट ब्रिगेड ग्रुप को जो है वो ला के कुछ ब्रिगेडों को पाकिस्तान के 70 किलोमीटर के अंदर ले आएंगे, वो बात तो हमारे नसर मिसाइल जब से आया, जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वॉरहेड लेके जाता है, उसके बाद तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर जैसे ठंडा पानी किसी ने डाल दिया है। इसलिए भारत के पास अभी S-400 मिसाइल है। भारत S-400 मिसाइल की इस टाइम पे उनके पास जो है वो गालिबन 5 बैटरियां जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन भारत का S-400 मिसाइल के ऊपर अभी उनका प्रोफेशनलिज्म का तजुर्बा नहीं हुआ, अभी उनका कन्वर्जन पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुआ। तीसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम है, जो मल्टीपल एंट्री जो है वॉरहेड सिस्टम उसके अंदर लगा है। यानी कि मैं इसको आसान लफ्जों में ये बताऊं कि अगर एक जो गोला, जो आम आदमी के लिए मैं बताऊं कि एक गोला पहले जाता था किसी की फजा में, दुश्मन की फजा में, और वो वहीं गिरता था, उस गोले को नाकाम करने के लिए दुश्मन का जो सिस्टम था वो काम करता था और उसको वहीं फजा में ही मार गिराया जाता था। लेकिन इस बार हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एक गोले में से 80 गोले बरामद होते हैं। किस किस को मारेंगे? इसलिए ये जो हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो कि इतने हाई टेक्नोलॉजी हैं और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चलते हैं, यानी कि अगर आपने सुई रखी है तो ये उस जगह जाके हिट करते हैं। भारत को ये बात मालूम है। एयरफोर्स के ऊपर अगर बात की जाए तो आप देख लें कि बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो हमने लगाए हैं, और उसके मुकाबले में जो भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इससे इंफीरियर है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब यह है कि 35 किलोमीटर जिस दुश्मन का जहाज दूर हो तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर से जो मिसाइल सिस्टम निकलता है, जिसको परसों ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुनिया के सामने तश्तस-बाम किया, ये भारत के लिए एक अचंभे से कम नहीं था, भारत के लिए एक समझें कि मौत थी। इसी वजह से राफेल जेट तैयारे जब फजा में बुलंद हुए तो उनके एयर चीफ जो थे, वाइस एयर चीफ, उन्होंने जो है वो फौरन राफेल को वापस बुलाने का कहा, क्योंकि उनको ये शक था कि अगर राफेल जेट जो है वो मारा गया तो पूरी दुनिया में भारत के लिए जो है वो कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और उनके ऊपर जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की धाक है वो तो उनको मालूम है कि 27 फरवरी को उनके साथ क्या हुआ था। 2 जहाज हमने गिराए थे, SU-30 और MiG-21। तो ये बात भारतीय जो एयरफोर्स है उनको अच्छी तरीके से मालूम है। बाकी जो भारत को देखें, जो वो ये सोच रहा था कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो है वो कोई खौफ तारी कर देंगे, कोई पाकिस्तान में सरासीमगी हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कौम पर फख्र करता हूँ। मुझे अपने मीडिया समेत 24 न्यूज़ के ऊपर फख्र है, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को जो है वो मुत्तहिद किया, मुनज़्ज़म किया, मुतहर्रिक किया और दुश्मन से लड़ने के लिए मज़ाहमियत पर तैयार किया। आज ये 7 लाख बमुकाबला 12,48,000 फौज नहीं है कि हमारी पाकिस्तान की 7 लाख और भारत की जो है 12,48,000। असल मसला यह है कि इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह 24 करोड़ अवाम के सामने जो है वो भारत खड़ा है और फौज के शाना बशाना खड़े हैं। फौजें जो हैं वो हौसला पकड़ गई हैं, फौजों के अंदर जो है वो एक नया वलवला और जोश पैदा हो गया है। और देखें, सबसे बढ़कर बात यह है कि भारत के साथ जिस दिन हमारी लड़ाई हुई उस दिन ग़ज़वा हिंद होगा, उस दिन ये लड़ाई नहीं होगी, भारत के लिए ये एक युद्ध होगा, यानी कि एक लड़ाई बिल्कुल होगी। ऐसा है, युद्ध होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।